everyone, welcome to my English class. Here we are going to do a chapter from your Hornbill book, that is the Browning version. So let's start. First of all, about the writer. Sir Terence Mervyn Rettigan is the full name of the writer. And in your book, I think Terence Rettigan is given. So this is the full name. And the time period, 10th June 1911 to 30th November 1977. He was a British dramatist and screenwriter. His plays are typically set in the upper middle class background. तो upper middle class को वो show करते हैं अपने plays में mainly. English playwright, a master of well-made play. He wrote the Winslow Boy in 1946, the Browning version in 1948, the Deep Blue Sea in 1952, and Separate Tables in 1954, and many others he wrote. And students, this chapter, the chapter which we are going to read today, this is an excerpt from the Browning version play. वो जो उन्होंने लिखा था play, उसका जरा सा part निकाल के अपन को अपने syllabus में mention किया है. All right. So let's start with the introduction first, then we'll go ahead for detailed analysis. All right. This chapter is a short extract from the play. जो play लिखा है, the Browning version, टेरेंस रेटिगन ने उसमें से निकाल के छोटा सा एक्सट्रैक्ट है आपके सिलेबस में. इट इज़ अ वन एक्ट प्ले सेट इन अ स्कूल. एक स्कूल में वन एक्ट प्ले सेट किया गया है. देयर आर 3 कैरेक्टर्स. कौन कौन से मेजर 3 कैरेक्टर्स आर हियर? कौन से? फर्स्ट इज टैप्लो. सो टैप्लो इज अ 16-year-old स्टूडेंट. देन फ्रैंक इज अ यंग टीचर. And Mr. Crocker Harris. Mr. Crocker Harris is a middle-aged schoolmaster, and one more minor character is given, that is Millie. She is Mrs. Crocker Harris. All right. And so here in the story, टैप्लो has arrived in the school to do his extra work for Mr. Crocker Harris. वो स्कूल में आता है टैप्लो, 16-year-old boy, and Crocker Harris उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया होता है उसको कंप्लीट करने के लिए. Then there he meets Mr. Frank and they both engage in conversation while Taplow waits for Mr. Harris. Later enters Millie, and Millie is Mrs. Crocker Harris who talks to Taplow. All right. Now I'll start the summary. The scene is set in a school where Taplow arrives to do extra work on the last day for Mr. Crocker Harris as he missed a day before. तो एक दिन पहले वो नहीं आता है वहाँ पे. कौन? टैप्लो. तो उसको एक्स्ट्रा वर्क देते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, इसलिए वो स्कूल में प्रेजेंट हुआ है. बैकग्राउंड है एक स्कूल का. He finds Frank a science teacher in the school. वो वहाँ पे देखते हैं. कौन? टैप्लो वहाँ पे देखता है साइंस टीचर को, जो कि एक सर हैं, उनका नाम है फ्रैंक. फ्रैंक आस्क्ड हिम हिज नेम. तो फ्रैंक जो टीचर हैं वो टैप्लो से उसका नेम पूछते हैं. एंड द रीजन इज ही देयर दैट स्कूल, यानी कि वो स्कूल में उस दिन क्यों प्रेजेंट है ये रीजन भी पूछते हैं, कारण पूछते हैं. Taplow studies in the lower 5th standard and is about to get his result from his teacher Mr. Harris. टैप्लो जो है वो लोअर 5th स्टैंडर्ड में है एंड वो आज अपना रिजल्ट भी कलेक्ट करेगा, मतलब उसको पता चलेगा कि वो प्रमोट हुआ या फिर से उसी क्लास में है. Mr. Crocker Harris usually reveals the result on the last day of school, and unlike every other teacher, he follows the रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बहुत ज़्यादा पक्के हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं उसके मामले में. एंड वो अदर टीचर्स की तरह पहले ही रिजल्ट रिवील नहीं कर देते. अदर टीचर्स मीन्स कर देते होंगे पहले से रिजल्ट रिवील की स्टूडेंट का ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं थे. ही वॉज अनलाइक अदर टीचर्स, यानी अदर टीचर्स के समान ना होना, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के पक्के थे. They both started. यहाँ पे Frank and Taplow started having a conversation while Frank asked him several questions. जब दोनों conversation में engaged होते हैं Taplow and Mr. Frank, तो Mr. Frank बहुत सारे questions पूछते हैं Taplow से. We don't see Mr. Crocker Harris in the whole chapter, but we get to know a lot about him. तो हम पूरे chapter में Mr. Crocker Harris को नहीं पाते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं
फ्रैंक, मिस्टर फ्रैंक जो टीचर हैं उनसे एंड उस बच्चे से, टैप्लो से. टैप्लो wants to take science as a remove because he finds the subject extremely interesting. तो वो चाहता है एक डिवीजन बनाने के लिए, एक कैटेगरी, एक श्रेणी के लिए कि वो क्या ले, वो साइंस ले, क्योंकि वो सोचता है कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. रिमूव मीन्स यू कैन से पोजीशन या डिवीजन. फ्रैंक ऑन द अदर हैंड डजंट लाइक व्हाट ही टीचेस. अब फ्रैंक जो है, मिस्टर फ्रैंक टीचर हैं साइंस के, लेकिन वो नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगता जो वो टीच करते हैं स्कूल में, यानी कि उनको साइंस सब्जेक्ट नहीं पसंद है, साइंस की टीचिंग नहीं पसंद है. मीन्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन एज ही नेवर श्रीविल अप. और मिस्टर हैरिस जो हैं वो हार्डली ह्यूमन मीन्स वो कभी भी, मतलब वो जैसे हैं वो हमेशा वैसे ही रहते हैं. ओके वो कभी भी श्रीवल अप नहीं होते, मतलब जैसे दिखते हैं वो वैसे ही रहते हैं. एक श्रीवल अप का मतलब होता है, यू कैन से मुरझाना, समथिंग लाइक दैट. ओके ही टोल्ड टैप्लो दैट ही विल गेट व्हाट ही डिजर्व्स. एंड वो कहते हैं टैप्लो को कि तुमको वही मिलेगा जैसा तुम डिजर्व करते हो, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर. एंड ही मेक्स हिम टेंस्ड. लेकिन जब उनको ये बात कही गई उनके द्वारा टैप्लो को, तो टैप्लो को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि ना तो जितना तुमको मिलेगा, जितने की तुम डिजर्व करते हो, जितने की तुम योग्यता रखते हो, तुमको ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम मिलेगा. टैप्लो फर्दर इमिटेट्स. फिर टैप्लो इमिटेट करता है मिस्टर हैरिस को ट्वाइस इन फ्रंट ऑफ फ्रैंक. तो जो मिस्टर फ्रैंक हैं साइंस टीचर, उनके सामने टैप्लो जो है वो उनकी मिस्टर हैरिस की इमिटेट करके बताता है, नकल करके बताता है. फ्रैंक admits that he envies Mr. Crocker Harris because of the effect he has on them. तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, this is not Frank's, this is Frank, all right. जो फ्रैंक हैं साइंस टीचर, वो स्वीकार करते हैं कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से एनवी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं. एनवीज का मतलब ईर्ष्या करना, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए. Taplo told him that he never shows his emotions like other teachers and never beats them up like other masters. He is not a sadist. And Taplo भी अपनी emotions को, Taplo बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कभी अपने इमोशंस किसी भी टीचर की तरह, किसी अदर टीचर की तरह अपनी इमोशंस शो नहीं करते. एंड वो कभी भी बच्चों को बिना बात के अदर मास्टर्स की तरह पीटते नहीं है, ना ही वो एक सैडिस्ट है, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जिसको मजा आए ऐसे भी वो नहीं है. कौन? क्रॉकर हैरिस. एंड ये सब बातें टैप्लो बताता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के बारे में. किसको? मिस्टर फ्रैंक को, साइंस टीचर को. As they were deeply engaged in a conversation, मिली एंटर्स. तो यहाँ पे मिली कौन है? मिली है मिसेस क्रॉकर हैरिस, यानी कि क्रॉकर हैरिस जो सर हैं उनकी वाइफ. तो जब वो डीपली इंगेज्ड होते हैं अपनी टॉकिंग में, तभी वो मैम एंटर करती हैं. एंड शी हैड अ शॉपिंग बैग विद हर. उनके पास क्या था? शॉपिंग बैग. She asked Taplo to go out and come back in a quarter of an hour as Mr. Crocker Harris will be late. So मिली है, तो मिली जो है वो क्रॉकर बताती हैं कि क्रॉकर हैरिस कुछ लेट हो जाएंगे, तो क्वार्टर ऑफ एन आवर में आपको वापस आना है. वो उसको कुछ, टैप्लो को कुछ बात बताती हैं, कुछ काम असाइन करती हैं, कुछ वर्क असाइन करती हैं. इफ़ हर हस्बैंड अराइव्स अर्लियर, वो बोलती हैं अगर उनके हस्बैंड जल्दी आ गए तो शी विल टेक द ब्लेम, यानी कि वो कह देंगी कि मैंने ही अपने काम से टैप्लो को कहीं भेजा है. दैट्स वाई टैप्लो इज नॉट हियर. शी फर्दर गिव्स हिम अ प्रिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्ट्स हिम टू परचेज मेडिसिन्स फॉर हर फ्रॉम द केमिस्ट. तो वो बताती हैं, उसको कुछ प्रिस्क्रिप्शन देती हैं एंड उसको गाइड करती हैं कि आपको ये मेडिसिन्स परचेज करके लानी है. कहाँ से? एक केमिस्ट से. टैप्लो फॉलोज एंड गोज अवे टू डू द जॉब. तो टैप्लो वहाँ से चला जाता है जो काम उसको असाइन किया होता है वो काम करने के लिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. सो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.